नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर रबीना शॉ। आई एम फोर्थ ईयर स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट। आई एम परसुइंग माई एमबीबीएस फ्रॉम एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान, and this video is esophagus part 3. I hope you all are ready, because in this video I will be discussing with dhamakedar tricks as usual. So I would like to suggest that this video is consist of gastroesophageal reflux disease, hiatal hernia, and Barrett esophagus. Okay, so we will discuss all these topics simultaneously. Let us begin our topic. Okay, gastroesophageal reflex disease. Okay, what happens here? See, this is our esophagus and this is our stomach. Okay, this is our stomach. Remember one thing, we have already studied previously that we are having diaphragmatic crura. Okay, diaphragmatic crura over here, or angle of His over here. Okay, and this is intra-abdominal esophagus. And here I would like to say that we are having the inner layer as squamous epithelium. Okay, there is a squamous layer here, means the layer of the esophagus, internal layer of the esophagus is squamous, and the G, from the place where G junction start, gastroesophageal junction start, from there onwards we will have the columnar epithelium. What we will have? Columnar epithelium. See, what do you mean by squamous? Squamous means like this. Okay, what do you mean by columnar? Like this. So why? What is the importance of this cell? See, in stomach we are having acid, so acid might destroy its own cell also. So what this columnar cell do? These columnar cells are having goblet cells which protect our stomach from the destruction of HCl, right? And we are also having some flora which help from stomach to get destroyed by the acid. So let us discuss. See, in gastroesophageal reflux disease, what happens whenever in this patient, and we are having lower esophageal sphincter. Okay, इन दिस पेशेंट, इस पेशेंट में क्या होता है, जब भी एसिड यहाँ पे रिलीज होता है नॉर्मली, तो स्फिंक्टर क्लोज रहता है यहाँ पे, है ना. लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज क्लोज्ड. So whenever this esophageal is closed, so whenever this acid get released and remain itself in stomach. But in gastroesophageal reflux disease, नोट कीजिए नाम पर, नाम में क्या लिखा है कि रिफ्लक्स हो रहा है. रिफ्लक्स मतलब एसिड जो है वो स्टमक से ईसोफेगस की ओर जा रहा है. तो एसिड जब स्टमक से ईसोफेगस की ओर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ का जो सेल है स्क्वैमस वाला वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा और वो कन्वर्ट हो जाता है कॉलमनर में. ठीक है, इरिटेट हो जाता है और वो खुद को चेंज कर देता है कॉलमनर में. स्क्वैमस सेल ऑफ esophagus gets converted into columnar cells of stomach. This is known as metaplasia, which we will see in Barrett esophagus, right? ये हो गया बैरेट इसोफेगस कैसे होता है, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स क्या है. ठीक है, दूसरी बात है, अब एक और रीज़न होता है, एक और कॉम्प्लिकेशन होता है गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स का. वो क्या होता है, हर्निया. हर्निया मीन्स क्या होता है, नॉर्मली हर्निया मतलब हम क्या जानते हैं, आउट पाउचिंग. इसका मतलब ये जी जंक्शन है, मान लीजिए ये जी जंक्शन है, तो यहाँ पे फंडस पार्ट ऐसे आउट पाउच हो जाता है. क्या होता है, ये आउट पाउच हो जाता है. ठीक है, मतलब बाहर निकल जाता है ना. तो ये डायफ्रामेटिक क्रूरा है, ये जी जंक्शन है, ये फंडस वाला जो पार्ट है ये आउट पाउच हो गया. इसको बोलते हैं हर्निया, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग हर्निया. क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग हर्निया. ये भी किस वजह से होता है, ये गट की वजह से ही होता है. और एक बात याद रखिए, जो बैरेट इसोफेगस है उसमें मैलिग्नेंसी होती है, मतलब वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होता है. अगर बैरेट इसोफेगस वक्त रहते ही हम ठीक ना करें, इफ वी विल नॉट ट्रीट द बैरेट इसोफेगस, इट विल कन्वर्ट इनटू adenocarcinoma. So
मेन जो है पैथोलॉजी हम जान चुके हैं क्या होता है जब भी एसिड जो है सिक्रेशन स्टमक में होता है और वो स्टमक में ना होकर जब वो इसोफेगस के रास्ते में जाता है तो हमारा जो सेल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या है, इसको देखिए। GERD एसिडिटी ईसोफेगस, ये क्लासिफिकेशन मॉन्ट्रल क्लासिफिकेशन के द्वारा दी गई है। एंड इन दिस क्लासिफिकेशन वी लर्न दैट रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड मीन्स दो गैस्ट्रिक एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है वो रिफ्लक्स ईसोफेगस में जाता है। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? फेलियर ऑफ एनाटॉमिकली मैकेनिकल प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्स। पता है ये क्या है ना? पहला क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम क्रूरा में कोई डिफेक्ट होगा तो ईसोफेगस से रिफ्लक्स जाने की चांस बढ़ जाएगी। लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर रिलैक्स जब हो जाएगा, ठीक है, तब जाने की चांसेस बढ़ जाएगी। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, तब जाकर के भी जी जो है गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लक्स होती है। ठीक है, फिर है ट्रांजिएंट लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर रिफ्लक्स। ये क्यों होता है? याद रखिए, जो GERD होता है ना वो मेनली ओबेसिटी में देखा गया है। ओबीस पेशेंट में, जो पेशेंट का वेट, जिस पेशेंट का वेट ज़्यादा है, या फिर जो पेशेंट कैफीन यूज़ करता है, खाता है, उन लोगों में देखा गया है। या फिर जो पेशेंट स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग इज़ द मेन कॉज अमंग दिस, एवरी ईच कॉज इज इम्पॉर्टेंट। सो ये ट्रिगर कॉज है। ये क्या करता है, जैसे कि जो पेशेंट मान लीजिए कॉफिन का यूज़ कर रहा है या फिर जो पेशेंट है स्मोकिंग कर रहा है, धीरे धीरे उनका जो है स्क्वैमस एपिथेलियम इसोफेगस का वो कॉलमनर में चेंज हो जाएगा और वो प्री मालिग्नेंट कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ईसोफेजाइटिस। ईसोफेजाइटिस मतलब ईसोफेजाइटिस इन्फ्लामेशन इन ईसोफेगस, इन्फ्लामेशन ही है ना ये इस टाइप का। और इसको ग्रेड से जज किया जाता है, जैसे कि अकेलेजिया में कौन सा ग्रेड पढ़े थे, शिकागो क्लासिफिकेशन पढ़े थे। एक अकेला एक आलसी लड़का था, याद है, और वो आलसी है तो वो बड़े सपने देखता है और बर्ड भी का पेरेंट्स अकेलेजिया में दिखाया गया है। उसी तरीके से GERD में भी लॉस ग्रेड्स है, जिसका A to 4, ग्रेड A से लेकर 4 तक हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन होगा? ये पैथोलॉजी कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका? पेशेंट का क्लासिफिकेशन है कि उसको हार्ट बर्न होगा, उसके सीने में जलन होगी, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है क्योंकि वहाँ पे एसिड रिफ्लक्स जा रहा है, रीगर्जिटेशन भी देखा गया, वॉल्यूम रिफ्लेक्स देखा गया। वॉल्यूम रिफ्लेक्स लेट फाइंडिंग है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन जैसे ही बताया, व्हाट इज बैरेट इसोफेगस होता है एक, इसमें बैरेट इसोफेगस क्या है? व्हेन column squamous cell of esophagus get converted into columnar cell. Why? Because acid get involved there, right? And this process is known as metaplasia, right? And second reason is hiatal hernia. Okay, uh, we have learned about this. So what we will do, yesterday we have learnt about the thumb rule of upper GI endoscopy. Thumb rule of esophagus is, whenever they will ask in the question what is the first management of diagnosis investigation we will do, we will always click और टिक और पुट आर सजेशन ऑन अपर जीआई एंडोस्कोपी, राइट। तो पहले हम अपर जीआई एंडोस्कोपी देखेंगे और अपर जीआई एंडोस्कोपी देख करके भी हमें समझ ना आए तो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग स्टडी देखेंगे। ये क्या होता है? ये होता है कि पेशेंट के नोज़ के थ्रू एक कैथेटर में प्रोब डाल दिया जाता है और पेशेंट को एक रिमोट दे दिया जाता है जो कि वो अपने पॉकेट में कैरी करता है और 24 आवर्स के लिए उसको अपने अंदर ईसोफेगस में ही इनपुट करके रखना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि जब भी पेशेंट को फील हो कि अब उसको रिफ्लक्स आने वाला है तो पेशेंट वो बटन ऑन कर लेता है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार के जो है उसमें देखेंगे, जैसे कि ये है इस प्रकार के उसका पीएच मॉनिटरिंग 24 आवर के लिए देखा गया। तो फिर धीरे, और अगर उसका जो लेवल है डी मिस्टर लेवल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डी मिस्टर लेवल, जो कि मोर देन 14.7 है, तो हम कहेंगे कि येस दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स। सी, अब ये बहुत ही डिफिकल्ट है ना, मतलब बहुत ही बुरा है पेशेंट के लिए भी और सभी के लिए कि 24 आवर्स तक आप एक प्रोब अपने नोज़ के थ्रू इसोफेगस पे रख रहे हैं, है ना। तो चलिए एक नया चीज़ शुरू किया गया है, वो नया टेक्निक का नाम है, न्यू टेक्निक का नाम है न्यू कैप्सूल, जिसको हम लोग ब्रावो के नाम से जानते हैं। वो 48 to 96 पीएच स्टडी करता है। वो कैप्सूल हम लोग को इनगल्फ कर लेना है, वो इसोफेगस में रहेगा और वो खुद ही मॉनिटर करके बता देगा कि ये क्या है। लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, जब हम सारे प्रोसीड्योर का लिंक को समझ में नहीं गया तब ये करना है, ठीक है। अब गैस्ट्रोइसोफेजल एसिड का है, एसिड का तो हम पीपीआई देंगे, प्रोटोन पंप इनिबिटर देंगे, 2 to 8 वीक्स अल्सर हील हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे हम सर्जरी पढ़ने जा रहे हैं, अगर एक सर्जन है तो लोग क्या सोचता है कि देखो भाई अब सर्जन है तो सर्जन सच में
अब वो अपना पैसा ज़रूर लेगा, बट ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्जन है, सर्जन भी पहले मेडिकल मैनेजमेंट ही करता है। वो मेडिकल ट्रीटमेंट करके देखना चाहता है कि वो ठीक हो रहा है कि नहीं, और जब वो ठीक नहीं होता तभी सर्जन सर्जरी का बारे में बताता है। अब देखिए सर्जरी भी है, एक है फ्लॉपी नीसन फंडोप्लिकेशन, एक है टोपेट, एक है डोर। ठीक है, फ्लॉपी नीसन फंडोप्लिकेशन क्या है? फ्लॉपी नीसन फंडोप्लिकेशन है मतलब जब गैस्ट्रो इसोफिगल रिफ्लक्स है वो पूरा डैमेज हो गया है, तो हम उसका जो स्फिंक्टर है उसको क्लोज करना चाहते हैं। तो हम ये हमारा एलियस जंक्शन है और हम इसको ऐसे 360 डिग्री द्वारा रोटेट कर देना चाहते हैं। जब कर देंगे तो इसको बोलेंगे फ्लॉपी नीसन फंडोप्लिकेशन 360 डिग्री। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब ऐसा ये वाला ऑपरेशन करवाते किया जाता है तो उसमें पेशेंट क्या हुआ कि पाया गया कि वो बहुत ज़्यादा ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पेशेंट को बहुत तकलीफ हुआ और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो गया। तो हम लोग टॉपिट ये करते हैं। टॉपिट क्या होता है? 270 डिग्री रोटेशन पे। ठीक है, 270 डिग्री रोटेशन पे। फिर उसके बाद जो कि पोस्टीरियर रैप है, ये स्टमक फ्रंट है और ये पोस्टीरियर रैप है। ठीक है, फिर उसके बाद है डोर रैप जो कि 180 डिग्री में होता है, वो एंटीरियर रैप होता है। वो हेलस मायोटोमी जो कि आपका एक्लेजिया में देखा क्या हिल हिल के चलता है ना, आलसी है तो हिल हिल के चलता है, याद आया कुछ? तो उसी में ये किया जाता है। अब न्यू ट्यूमर ट्रीटमेंट निकाला गया है आपका गर्ड में, वो है मैग्नेटिक रिंग एनसर्कल लोअर इसोफेजल जोन, जिसको हम लोग लिंक्स प्रोसीड्योर कहते हैं। इसका मतलब कि ये जो इसोफेगस है इसके आसपास एक मैग्नेटिक रिंग लगा दिया जाता है और ये लिंक प्रोसीड्योर इसे बोला जाता है, इसी के द्वारा ये ठीक होता है। ठीक है, तो अब आ गया है वक्त धमाकेदार ट्रिक्स का, तो चलिए ट्रिक्स देखते हैं। अब देखिए बंगाली में एक कहावत है, আমার মনটা লস হয়ে গেছে, আমার মনটা खोए গেছে। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बंगाली है। तो देखिए गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है उसमें एक है मोंटा रे लॉस हो गए, और इसका मतलब जो मॉन्ट्रल क्लासिफिकेशन है और लॉस ग्रेड क्लासिफिकेशन है वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स में आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो इससे हमारा मॉन्ट्रल और लॉस क्लासिफिकेशन हो गया, याद हुआ कुछ? और आगे देखते हैं। नीसिन एंड मिस्टर दो दोस्त है, जो कपल है, वो लोग के बीच वो लोग दोनों ही होशियार है। अब देखिए, अब एक मान लीजिए किसी चीज़ में होशियार है, दूसरा किसी चीज़ में होशियार है, तो दोनों के बीच में एक टाइप का अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है ना? कि अगर मैं ऐसा ये होशियार ऐसे इस फील्ड में होशियार, वो इस फील्ड में होशियार है, तो चलो दोनों मिल जाते हैं। क्या कहते हैं? मिल जाते हैं। तो दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है। तो बोथ ऑफ देम आर होशियार मीन्स ब्रावो, both of them are होशियार means bravo, and both of them were having magnetic attraction among them. वे who were having निसन एंड मिस्टर। सी हम क्या पढ़े थे कि जो डी मिस्टर क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर आ गया, देखिए मोर देन 14.7, और ब्रेवो था, दोनों ही ब्रेवो, और निसन फंडोप्लिकेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर GRD। समझ में आया? और न्यू याद रखिएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस। अब आते हैं बैरेट इसोफिगल। कितनी बार बैरेट इसोफिगल पढ़ेंगे? कोई बात नहीं, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रिवीजन होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए कुछ म्यूकोजल फोल्स दिखाई देता है। अब बोलेंगे और हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब यहाँ पे कोई वाइट लाइन दिखाई दे रहा है, हाँ हो रहा है। ये जो वाइट लाइन होता है यहाँ पे, ये वाइट लाइन है मेरा ईसोफेगस का गुड स्ट्रक्चर। क्या है? ईसोफेगस का गुड स्ट्रक्चर। और ये रेड वाला जो होता है, ये बैरेट इसोफेगस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कॉलमनर एपिथेलियम हो चुका है। जो हमारा एपिथेलियम है वो स्क्वैमस से कॉलमनर हो चुका है, और इसको बोलते हैं। अब देखिए, अब हमेशा ये जो लाइन है ना, ये वाला जो हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी, मैं जो ये वाला ड्रॉ कर रही हूँ, इसको बोलते हैं जेड लाइन। इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। जेड लाइन इज प्रेजेंट वेयर? कहाँ होता है जेड लाइन? गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन में होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए कॉलमनर इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया ऑफ लोअर इसोफेजियल, लेंथ जो है मेटाप्लेजिया का मोर देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैथोजेनेसिस क्या है? म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स। क्यों? क्योंकि गॉबलेट सेल सिर्फ स्टमक में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। और जब एलियस में आ जाएगा तो क्या हो गया? क्या समझेंगे हम? हाँ, बैरेट इसोफेगस समझेंगे और कुछ नहीं समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक लाइट है यहाँ पे, एक लाइट से भी चेक करते हैं। और क्या है इसका क्लासिफिकेशन? जाहिर सी बात है, ये गट का कॉम्प्लिकेशन है ना, तो गट जैसा ही फीचर देगा।
क्या देगा, गर्ड जैसा ही फीचर देगा ना, तो आप क्या समझ रहे, कुछ और देगा क्या? तो सिमिलर टू गर्ड, डिस्फेजिया, हार्टबर्न, रिगर्जिटेशन, एपिगैस्ट्रिक पेन, राइट। एंड वी आर हैविंग एनबीआई लाइट, एंड एनबीआई लाइट का अभी जो है हमें ये जो वेवलेंथ है वो याद करना पड़ेगा, वो है 450 नैनोमीटर ब्लू लाइट एंड 540 नैनोमीटर ग्रीन लाइट, ये याद रखना पड़ेगा। मैलिग्नेंसी, अब बैरेट इसोफेगस है वो मैलिग्नेंट करवाता है ना। मैलिग्नेंट क्या होता है मैम? मैलिग्नेंट मीन्स क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा कॉज करता है। तो चलिए देखते हैं जिसको बैरेट इसोफेगस है वो कितने ईयर में कॉज करेगा। ये है 0.5% पर ईयर टू 0.7% पर ईयर फॉर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, फॉर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया इज 7% एडिनोकार्सिनोमा। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सी, जैसे कि अक्यूलेजिया में ये है तो लॉस हो गया आपका इसमें सीएटल प्रोटोकॉल 4 क्वाड्रेंट बायोप्सी एट द इंटरवल ऑफ 2 सेंटीमीटर along the length at the time of diagnosis in future surveillance we have to do the biopsy। ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा? गर्ड है कॉम्प्लिकेशन मेन, तो पहले गर्ड को ट्रीट करना पड़ेगा, और अगर मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया कुछ ना रहे तो सिर्फ गर्ड को ट्रीट करके एंडोस्कोपिक सर्विलेंस करेंगे 3 to 5 ईयर्स में, देखेंगे कि कहीं ये कैंसर तो नहीं बन रहा है। फिर क्या है आपका बैरेट इसोफेगस, अगर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया है तो उसका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करवाएंगे, साथ ही साथ रेडियोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन करवाएंगे, हटा देंगे ताकि वो कल को जाकर के हमारा एडिनोकार्सिनोमा में कन्वर्ट ना हो जाए। और गर्ड जो है वो रूट कॉज है तो उसको तो ट्रीट करना ही पड़ेगा, है ना। तो गर्ड। फिर आपका है बैरेट इसोफेगस विथ हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका समझ जाना चाहिए कि अब हमारा जो सेल है वो कैंसर की ओर चला गया है, ठीक है। फिर हो गया हमारा हाई, चलिए हाँ 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 सॉरी, आपका फेवरेट टॉपिक क्या है? ट्रिक। तो ट्रिक क्या है इसमें, आइए देखते हैं। एक लड़का और एक लड़की, व्हेन अ बॉय एंड अ गर्ल मीट, और जब बॉय को कहना होता है, क्या कहना होता है कि मैं तुम्हारे घर पे अपना बारात लेकर आऊँगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि जो बारात है वो समुंदर में आती है बारात। बारात कहाँ आती है? समुंदर में आती है। वो लड़का वो अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है कि जो मेरा बारात होगा ना वो बहुत ही खास होगा, मेरा बारात समुंदर में आएगा, और जो चारों दिशाएं होंगी, 4 दिशाएं होती है ना, वो चारों दिशाएं साक्षी होगी कि मैं तुम्हें सबके सामने अपनी वाइफ बना रहा हूँ। तो बारात कहाँ आया है? समुंदर में आया। तो सीटल प्रोटोकॉल में देखा जाता है, देखिए सीटल प्रोटोकॉल क्या होता है बैरेट इसोफेगस में। सीटल प्रोटोकॉल होता है कि जब भी बायोप्सी ले जाता है वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट में लिया जाता है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर अपार्ट में लिया जाता है। तो बैरेट इसोफेगस में हम ये देखे बारात यहाँ आया है ना, और क्या है यहाँ पे, फिर उसके बाद और चारों दिशाएं उसकी साक्षी होती है। चलिए अब आते हैं हाइटल हर्निया में। हाइटल हर्निया क्या होता है? अब इधर देखिए, जब भी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स होता है ना, ये जब भी होता है तो हमारे यहाँ पे ये लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर है। क्या है? लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर। ये है डायफ्रामेटिक क्रूरा, है ना, डायफ्रामेटिक क्रूरा। तो यहाँ पे लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर है, ये स्टमक है स्टमक। तो जब भी यहाँ का एसिड यहाँ आता है ना तो खुद में यहाँ पे अल्सर होना शुरू होता है और ये खुद ही हील होता है। जब ये खुद ही हील होता है ना तो यहाँ पे फाइब्रोसिस होता है। क्या होता है? फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये जो इंट्रा एब्डोमिनल लेंथ ऑफ इसोफेजल है वो छोटा हो जाता है। क्या होता है? छोटा हो जाता है, और वो कुछ इस प्रकार से दिखना शुरू हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हाइटल हर्निया। क्या बोलते हैं? हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया जो है माइग्रेशन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स थ्रू इसोफेजल हाइटस इनटू थोरैक्स, पैथोजेनेसिस गर्ड के वजह से होता है। पहले ही पढ़ चुके हैं, जो गर्ड है वो मेजर कॉज करता है बैरेट इसोफेगस जो कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होता है एडिनोकार्सिनोमा का, और हाइटल हर्निया करता है जो कि स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, वो मोस्ट कॉमन कॉज है। अल्सरेशन, फाइब्रोसिस ऑफ इसोफेगस, शॉर्टनिंग ऑफ जी जंक्शन ड्यू टू हीलिंग एंड फाइब्रोसिस, स्टमक माइग्रेट इनटू थोरैक्स। द पार्ट ऑफ द स्टमक is migrating into the thorax. This is known as hiatal hernia, right? और क्लिनिकल फीचर्स भी गर्ड के जैसा ही होगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन गर्ड का ही है। और इसमें देखा गया है स्लाइडिंग हर्निया, रोलिंग हर्निया, मिक्स्ड हर्निया, कॉम्प्लेक्स हर्निया। तो आइए देखते हैं। स्लाइडिंग हर्निया मीन्स स्टमक का पार्ट थोड़ा ऊपर चला गया, देख रहे हैं। रोलिंग हर्निया, जी जंक्शन तो नीचे ही रहेगा लेकिन ये फंडस वाला पार्ट ऊपर चला जाता है। मिक्स्ड मीन्स जी जंक्शन भी ऊपर चला जाएगा थोरैक्स के, और फंडस वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा। और आपका होता है टाइप 4 जो है उसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉलन हो गया या कोलन हो गया, वो भी ऊपर चला जाता है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन चॉइस क्या करेंगे आप लोग? पहले ही बताए थे, थंब रूल है ये इसोफेगस का कि अपर जीआई
एंडोस्कोपी करवा लेंगे, उसमें देखेंगे कि क्रूरा कैसा है, प्रेजेंट है कि नहीं है। माइग्रेशन ऑफ जेड लाइन देखेंगे, अगर वो अपवर्ड रहा तो इसका मतलब वो क्या, हाँ वही, ठीक है, हाइटल हर्निया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमेशा सीटी विथ ओरल कॉन्ट्रास्ट देखेंगे, चाहे वो स्लाइडिंग हो, रोलिंग हो। और एक थंब रूल है, वजह से जो रिफ्लेक्स होता है उसके लिए हाइटल आपको हर्निया के लिए हर्निया के लिए एक्चुअली वाला कहीं भी procedure बॉडी भी में करना कहीं भी पड़ता अगर है, हर्निया hernia हो तो के आपको लिए। सर्जरी करना या पड़ेगा, यहाँ हेवी। पे और लेप्रोटॉमी उसके सर्जरी बाद करना आपको पड़ता है, ट्रीटमेंट प्लस देना पड़ता है गर्ड के वजह से जो ठीक है? रिफ्लेक्स होता है और इस उसके लिए तरह आपको से डोर हमारा आज का वाला टॉपिक हो गया है procedure समाप्त। और थैंक यू सो मच आप सभी को, जो आप इतने प्यार से मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एवरीवन जो भी मेरे कमेंट को मेरे यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, मीन्स उनका अपना प्यार है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आशा करते हैं कि जो पहले दिन हम आके बोले थे आपसे, जो पहले दिन मैं आपके सामने आकर बोली थी कि मैं कोशिश करूँगी कि अपना मेहनत पूरा देने का और आपको टॉपिक क्लियर करने का, और मैं उस पर खड़ी उतर रही हूँ और आगे भी खड़ी उतरूँगी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और वेट करें मेरे रिप्लाई का, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और क्लास जाती हूँ, पढ़ती हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई दूँगी। और आपको किस तरह पढ़ना है वो मैं एक वीडियो शॉर्ट क्लिप्स बनाऊँगी, उसमें कुछ मैसेज दूँगी, आप प्लीज़ उसको देखें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखें और फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नए जोश के साथ, ठीक है, बाय।